So I have discussed some of your questions. So I'll continue with that discussion. This is UGC 2014 and 18. So it has repeatedly asked this question. Okay. So when we talk about the equilibrium constant calculation, there are different way to look at, and this is one of the most important uh, questions in the topic. Okay, the cell reaction Sn plus 4 gives twice of Sn2. The electrode reactions along it standard potential are given below at 25 degrees Celsius. Okay, calculate the equilibrium constant. At 25 degrees Celsius. Okay, the reaction 1 is tin 4 plus, get 2 electrons to convert into tin 2, and the electrode potential is equals to 0.15 volts. B, tin plus 2, get another 2 electrons to convert into tin solid. So standard potential is equals to minus 0.14 volt. Now, provided the RT upon F is equals to 25.7 millivolt. Okay. Now these are the information given. So you can calculate it easily as we use equations. But first we have to understand what is the reaction, the cell reaction given, and how these cell reaction given can be derived from the given information of A and B. So if you do subtractions of equation B from the equation A, okay, so if you do, suppose A is Sn4 plus 2 electrons give Sn2. If you subtract the B, that is minus of Sn2 plus twice of electron Sn. Okay, so you subtract it from the A, ठीक है, A से आप B को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? जब माइनस साइन है तो इधर जो है B वाला जो है इसको राइट लेफ्ट में रखना पड़ेगा और इसको राइट में रखना पड़ेगा और कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली Sn प्लस
SN4 and it will get twice of SN. So this is the reaction which you are obtain. तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले आपकी सेल रिएक्शन निकालनी है. अब सेल रिएक्शन में आपने सबस्ट्रेट किया है तो ऑब्वियसली कौन सा लेफ्ट में रखेंगे कौन सा राइट में रखेंगे, दैट यू ऑल नो. सो देयरफॉर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है ई राइट, ठीक है, ई राइट. ई राइट कौन सा हुआ? इस रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं तो ई राइट जो है ए हुआ. ई लेफ्ट कौन सा हुआ? ई बी हुआ. ठीक है, मतलब ए न बी जो मैं नाम दे रहा हूं वो इस रिएक्शन के रेफरेंस में दे रहा हूं, इस रिएक्शन की रेफरेंस में. तो सबसे पहले जो रिएक्शन ए है उसका पोटेंशियल कितना है? 0.15 वोल्ट्स माइनस 0.14 वोल्ट्स. तो इसका जो है 0.29 वोल्ट्स. सो पॉजिटिव है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है इस प्रोसेस का. ठीक है. सो देयरफॉर यू कैन यूज द इक्वेशन standard cell potential is equals to RT upon NF ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, और हमारा RT अपॉन F दे रखा है 25.7 मिली वॉल्ट्स. सो आपकी जो वैल्यू है हम पुट कर दें 0.29 वोल्ट इक्वल्स टू 25.7 मिली वोल्ट अपॉन 2 एंड ln इक्विलिब्रियम. सो ln इक्विलिब्रियम क्या होगा? ln इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 0.29 into 2 upon 25.7 millivolts. ठीक है. So this can be written as 0.29 into 2 upon 25.7 into 10 to the minus 3 मिलीवोल्ट है, तो वोल्ट में कन्वर्ट करो तो यहाँ आएगा. ठीक है. So this is coming out to be 22.6. ठीक है, 22.6. सो हमारा जो वैल्यू है वो है ln के इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट 22.6. सो log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 22.6 अपॉन 2.303 जो आपका कन्वर्जन फैक्टर है. तो इसका वैल्यू आएंगे 9.8. सो अप्रोक्सीमेटली 10. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ? यू आर गेटिंग इक्विलिब्रियम इज 10 to the power 10, right? So this is the value you are getting. Okay, this is the value you are getting. So this is the spontaneous reaction and this is a the favorable reaction. क्योंकि K का वैल्यू पॉजिटिव है और ज़्यादा है तो ये कन्वर्जन फेवरेबल है. सो वन कैन ऑल्सो टॉक अबाउट समटाइम क्वेश्चन जो है दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है कि वेदर द गिवन रिएक्शन इज फेवरेबल और नॉट, ये भी आ सकता है. सपोज इफ द क्वेश्चन इज वेदर द रिएक्शन is favorable or not. ठीक है, ये भी हो सकता है. So in this case one can say since the values are large, since K values are value of K is large, so the reaction is favorable. ठीक है, reaction is favorable, right? So depending on the question you can
expect that what kind of the questions can be put and the how it can be answered. I have seen some said 10 to the power 10 कैसे हो गया सर? Okay, no need to write question you have. Okay, no problem. Questions are little different. That's why I have modified little questions. जो क्वेश्चंस आपकी जो हैं वो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है वही क्वेश्चन आए, तो मैंने थोड़ा सा वर्डिंग में मॉडिफाइड किया है. दैट्स व्हाई आई राइट द क्वेश्चन. ओके, डोंट वरी. स्लाइड सर आप लिखो 7 स्लाइड नंबर. बेटा मैं हिंदी में भी तो बता रहा हूँ स्टार्टिंग से. चलो नीतू जी बताएंगे. ओके, तो हमने जो स्टडी किया है वो इस रिएक्शन को स्टडी किया है बेसिकली. जो ऊपर मैंने जो रिएक्शन लिखा है वो क्या है? द रिएक्शन इज 3 जो हैं ये 3 की ये रिएक्शंस हैं. ठीक है, 3 की रिएक्शंस हैं. इस रिएक्शन को क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है. ऑक्सीडेशन रिडक्शंस और उसकी जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके साथ हमने इस रिएक्शन को कैसे लाना है उसको पहले डिराइव करेंगे. और जब रिएक्शन जो है वो लिखते वक्त आपने सब्सट्रैक्ट किया है या एडिशन किया है, उसके आधार पे आपकी ई कैलकुलेशन होगा, ई सेल की कैलकुलेशन होंगी. ई सेल की कैलकुलेशन जैसे हमने रिएक्शन में सब्सट्रैक्ट करके किया है, ए जो है ए से बी को सब्सट्रैक्ट करके हमारा सेल रिएक्शन, जो सेल रिएक्शन तो नहीं कह सकता पर रिएक्शंस लाया है जो गिवन रिएक्शंस है, तो हमारा यहाँ पे भी ई जो है माइनस करके ही निकलेगा. तो हमारा ई निकल गया. बाकी आपकी क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की क्वेश्चंस हैं उसको पुट किया और वैल्यू से सब्स्टिट्यूट किया है. और यहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर है, यहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर है वो ये है कि आप ln, ठीक है, ln एक्सपोनेंशियल लॉग है, सो ln को हम 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 22.6 होता है. तो इसलिए मैंने क्या किया है, log के 22.6 अपॉन 2.303 दैट इज इक्वल टू 9.8. सो अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीन्स 10. ठीक है, सो ये जो log है नेचुरल log बेस 10 का है. सो बेस 10 के जब एंटी log ले लेंगे टू द पावर ऑफ 10, तो ये जो आपका ये जो है नेचुरल log जो बेस 10 वाला है LOG, वो आप एक्सपोर्ट यहाँ पे लाएंगे तो 10 टू द पावर मतलब बेस 10 आता है. ठीक है, दैट्स व्हाई आई राइट. यस, एनी मोर क्वेश्चंस, एनी चैटिंग्स? हम कैसे डिसाइड करेंगे किस में माइनस करेंगे? वो आपको देखना है संयुक्ता, आपको देखना है कि रिएक्शन जो गिवन है वो आपने लाना कैसे हैं. आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उस हिसाब से जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको कैसे हम ला सकते हैं, एडिशन करके या सब्सट्रैक्शन करके. तो आपको उस पर्टिकुलर रिएक्शन के जो कॉन्सेप्ट है, या हम कह सकते हैं कि ई वैल्यू जो है वो जिसकी हाई है और जिसका लो है, लो को हाई से माइनस कर दो. ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी यूज. यस मोनिका वांट टू स्पीक. ओके, लेट मी जस्ट ट्राई टू चेक. यस मोनिका बोलिए. Sir, can we write it in e raised to the power also, as we write it in 10 raised to the power 10? यस वी कैन डू दैट. उसमें हमको लॉग नेचुरल लॉग में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज मैं आपको कहूँ कि क्वेश्चंस में आपको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देता हूँ. जस्ट अ मिनट.
I just scroll down a little bit. Suppose ln K equilibrium is equals to the 22.6. Now your answer is given in this way, exponential 22.6. So this is also true. So if the objective type में ऐसा question आता है, तो this can be exponential. So your answer will be true. Okay. So this is the same thing. Only the जो given information है log की form में, नेचुरल लॉ की फॉर्म में है तो नेचुरल लॉ की फॉर्म में लिखोगे, एक्सपोनेंशियल में दे रखा है तो एक्सपोनेंशियल में देखोगे. ठीक है. सो दैट कैन बी डन, नो प्रॉब्लम. ठीक है. यस. सो लेट मी go ahead. I hope, let me just lastly check if somebody or they had been, oh, कहाँ रह गया? Somebody chat or not? Okay, I hope. Yeah. जब अपने ये भी किया तो E0 की वैल्यू चेंज क्यों? E0 का वैल्यू चेंज क्यों? ई वैल्यू का चेंज नहीं होगा. इस ई नोट की वैल्यू नहीं चेंज होता है, वो आपको मैं शुरू से भी कह रहा हूँ. ठीक है. एनीवे ये बार बार रिपीटेडली नहीं हो पाएगा, आपको रिमाइंड करना पड़ेगा जो पढ़ाया गया है. सो यू हैव टू गो थ्रू. ओके. सो लेट मी गो अहेड टू अनदर क्वेश्चन. सो लेट मी चेक. यस सर, आप प्लेट में से डायरेक्ट बता दीजिए. देखो ऐसा है, आप लोग कोई कहेगा लिखो, कोई नहीं कहेगा नहीं लिखो. मैं अपनी हिसाब से पढ़ाऊंगा, इसमें आप लोग बार बार मेरे को डिटेक्ट ना करें. ठीक है. क्योंकि आप अपनी समय के हिसाब से सोचते हो, मैं भी अपनी समय के हिसाब से सोचता हूँ. कुछ लोग चाहते हैं लिखें, कुछ लोग चाहते हैं नहीं लिखें. ठीक है. सो बार बार आप लोग इस तरह का करेंगे, सो आई कांट टीच. आप मेरे को अपनी पढ़ाने दीजिए, और समझ में नहीं आता तब पूछिए. ठीक है. आप मेरे को इस तरह का पढ़ाने का जो है वो डायरेक्शन मत दीजिए. ठीक है. पढ़ाने के समय में नहीं समझ में आता है किसी चीज़ का, आप ज़रूर पूछिए. आप 2 घंटा लीजिए, 3 घंटा लीजिए, बट मेरे को कैसे पढ़ाना है वो मत समझाइए. ठीक है. वो तुम्हारे डोमेन में नहीं है. Okay, let me give you, there are so many questions, I just wanted to give you a different format of it. Let me also talk about another questions. Yes, that can be one way to do that. Okay, so let me talk about the potential of cell zinc ion 0.01, iron plus 2 0.01 m, and iron 3 0.01, and platinum is measured as 1.17 volt at 25 degrees Celsius. Calculate equilibrium constant for the cell reaction
at 25 degree Celsius. ठीक है, so the reaction is given as to zinc plus iron 3 gives zinc plus 2 and twice of iron plus 2. तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शंस एक टर्मिनल में है, ये आप इलेक्ट्रोड को देख के बता कर सकते हैं ये इलेक्ट्रोड है रिडॉक्स का, ये मेटल मेटल आयन का है। तो इलेक्ट्रोड पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। समटाइम पीपल हैव कंफ्यूज, तो आप लोग कंफ्यूज ये हो जाता है कि मैं इलेक्ट्रोड किस टाइप की इलेक्ट्रोड, यहाँ 2-2 क्यों लिखा गया है, कैसे मैं यूज़ करूँ। तो इलेक्ट्रोड को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स हैं। तो अब हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं, तो 2 टर्मिनल से हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशंस हैं उससे पहले हम मैक्सिमम जो कैलकुलेशन है हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि रिएक्शंस, सबसे पहले हमारा रिएक्शन है जो हमने फोकस करना है। जो गिवन रिएक्शन है वो आपका जिंक जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और आयरन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे पहले ये देखो, ये आपका रिडक्शन हो रहा है आयरन, और ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब नाउ इससे हमारा क्या निकल सकता है इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन के सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो निकल सकता है वो ये है कि हमारा रिएक्शन क्वेश्चंस निकल सकता है। रिएक्शन क्वेश्चन क्या है हमारा, क्यू। रिएक्शन क्वेश्चंस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट, है ना। तो सबसे पहले हमारा रिएक्शन क्वेश्चन जो हमने नर्स इक्वेशन में पढ़ा है वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है आयनिक फॉर्म है, तो जिंक की आयन, उसके बाद आयरन का, ठीक है, स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय आयरन प्लस 3 है, उसका 2 है, तो स्क्वायर जो है कोएफिशिएंट। अब ये जो फैक्टर है ये क्या है, ये सॉलिड है। ये सॉलिड की एक्टिविटी क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हमारा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो सिंस कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इज 1, अदरवाइज आप लिख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं रिएक्शन क्वेश्चन इज गिवन बाय कि हमारा जितनी प्रोडक्ट हैं और रिएक्टेंट हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, बट फाइनली मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आपने क्यों नहीं जिंक लिखा है। जिंक और आयरन लिखना ये चाहिए था, है ना, क्योंकि जिंक की 1 है इसलिए मैंने इसको इसमें लिख दिया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। सो एक बार आपका ये रिएक्शन क्वेश्चन आ गया, तो रिएक्शन क्वेश्चंस क्यों हम जरूरी है, रिएक्शन क्वेश्चन से हमारा कंसंट्रेशन गिवन है, उससे हमारी रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू निकल सकता है। तो नर्स इक्वेशन के थ्रू हम ई पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि ई पोटेंशियल इसमें नहीं दे रखा है। सो इस कॉन्सेप्ट से हमारा जिंक की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, और आयरन प्लस 2 की क्या कॉन्सेंट्रेशन है जो गिवन है सेल के अंदर, 0.001, और आयरन 3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.001 मोलर, ठीक है। सो हमारे पास सारे गिवन है, तो रिएक्शन क्वेश्चन जब लिखेंगे तो क्या आएगा, 0.01 मोलर इंटू 0.001 concentration square divided by 0.01 square. So now इसमें जो है आपका ये एक एक कैंसिल हो सकता है, तो दोनों ये वाला सेम है, एक बचेगा, ठीक है, सिर्फ एक बचेगा इसमें, दोनों में से एक, और हम इसको 0.01 होल स्क्वायर अपॉन 0.01 बचेंगे, ठीक है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा,
इसका मतलब 10 टू द पावर -4 हैं, दोनों को कैंसिल करेंगे तब, ठीक है, इतनी वैल्यूज रहेंगे 10 टू द पावर -4। अब नाउ रिएक्शन क्वेश्चन पता चल गया है तो नर्स इक्वेशन की फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं। सो नर्स, अकॉर्डिंग टू द नर्स इक्वेशन हमारा E इक्वल्स टू E सेल इज इक्वल्स टू E स्टैंडर्ड सेल, सॉरी माइनस होना चाहिए, कभी कभार हम भी जल्दी लिख लेते हैं, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, क्योंकि बार बार यस, सो माइनस 0.0591 क्योंकि 25 डिग्री में है, ऑलरेडी गिवन है। सो इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो भी डायरेक्टली आप लिख सकते हो। लॉग ऑफ क्यू, रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू भी पता है, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट, क्या निकाल सकते हैं आपका वैल्यू जो है, यस, सो व्हाट यू कैन टॉक अबाउट, रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, ये आपका नहीं है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो आपका क्यू पता है, आपको ई स्टैंडर्ड पता है, ई स्टैंडर्ड पता नहीं है बट ये पता है, ठीक है, क्योंकि ये भी गिवन है आपके क्वेश्चंस में, राइट। सो व्हाट आई कैन यूज इज, इसमें एक और कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं, ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n log k इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये क्वेश्चन कॉमनली है। सो हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ई पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n log k इक्विलिब्रियम माइनस 0.0, यहाँ पे भी 2 यूज होगा ना, यहाँ पे भी 2 है, सॉरी 2 ही यूज कर लो, 91 अपॉन 2, यह भी मैं 2 यूज कर लेता हूँ डायरेक्टली। और लॉग इसमें क्या है, लॉग आपका वैल्यू कितना आ गया था, 10 टू द पावर -4, ठीक है। अब नाउ आई कैन यूज द वैल्यू, हमने कितना वैल्यू दे रखा है ई पोटेंशियल का, व्हाट इज द ई पोटेंशियल वैल्यू, 1.17, सो 1.17 वोल्ट इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 log k इक्विलिब्रियम माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 to the power -4। ओके, अब नाउ इसको हम यूज कैसे करें, पहले ये कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म को कंबाइन करो, ठीक है। सो दिस बिकम क्या आएगा, log k इक्विलिब्रियम -4, ठीक है। So this will be 0.0591 upon 2 log k इक्विलिब्रियम +4, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, हमने k इक्विलिब्रियम निकालना है। So k इक्विलिब्रियम will be given as log k इक्विलिब्रियम is equals to, क्या होगा, this will be 1.17 into 2 divided by 0.0591 minus 4. So this value is coming out to be 57.87 minus 4. So this will be equals to 54. So sorry, 53.87. So approximately 54, ठीक है। फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखा है तो फ्रैक्शन में यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज ये फैक्टर्स ले सकते हैं। सो के इक्विलिब्रियम विल बी 10 टू द पावर 54, सो ह्यूज वैल्यू।
so very good reactions can be found. Okay, so that is how you can do. So यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, ये क्वेश्चंस में हमारा डायरेक्टली ई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिया है, आपको नर्स इक्वेशन के थ्रू, आपको रिएक्शन क्वेश्चन के थ्रू निकालना है. सो दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो कम इनटू. आपको सिंपल सा रिएक्शन दे के कर सकता है तो वो कर दो, नहीं तो इस प्रोसेस में रिएक्शन क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है, सम ऑफ देम अब्सर्ड कैसे आया. देखो ये सब वैल्यू का क्या लिखा है, आ रहे हैं 35.59, इसमें 35.59 आ रहा है. आप अपना चेक करो, वैल्यू 35 नहीं आएंगे सर. नेट क्वेश्चन ये जो करा रहे हैं वो आप नोट कर लो. ठीक है, ठीक है, राइट. देखो ये बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चंस में क्या है. क्वेश्चंस के अंदर सेल रिएक्शन है और पोटेंशियल दे रखा है, बट स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं दे रखा है. स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं देगा, सिर्फ सेल पोटेंशियल दे रखा है. कैलकुलेट करना है तो हमको तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल चाहिए ना. तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहाँ से आएगा, तो आपके सेल रिएक्शन से आएंगे. तो सेल रिएक्शन पहले दिखा, उसका रिएक्शन क्वेश्चन निकाले हैं. रिएक्शन क्वेश्चंस में आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू पुट किया है. उसके बाद ये जो आपका वैल्यू रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू आ गया, तो आपने डायरेक्टली नर्स इक्वेशन यूज किया है. नर्स इक्वेशन में पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड रिएक्शन क्वेश्चन के रिलेशन है. तो वहां से हमने क्या किया है, हमने इसकी वैल्यू पता है, इसके नहीं पता था, तो इसका इक्वेशंस हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन की थ्रू निकाला है. ठीक है, 0.059 आया है ऑन द बेसिस ऑफ आर टी अपॉन एफ एट 25 डिग्री सेल्सियस. ये शुरू से ही मैं लिखते आ रहा हूँ, कांस्टेंट फैक्टर की रेशियो के वैल्यूज हैं. और 2.303 भी, 2.303 भी. ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, सो नाउ बाकी तो सारे सेम है प्रोसेस में. ओनली थिंग इज दिस कन्वर्जन इज इम्पोर्टेंस, एंड यहाँ से सारे वैल्यू का ही आपने ऐड करना है. ठीक है, सो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम्स इन दैट. यस, ये सालू रिएक्शन क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम में के इक्विलिब्रियम होता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. सफूरा सफूरा क्या कह रहे हैं, आंसर आंसर 35.59 आ रहा है. लेट मी जस्ट चेक. तुम्हारी कोई वैल्यू में तो चेंजेस नहीं है. लेट मी जस्ट चेक. जो आप कह रहे हैं बिल्कुल कैलकुलेशन में थोड़ा कुछ हो सकता है. लेट मी जस्ट वन अगेन चेक इट, नो प्रॉब्लम. जो आपको लग रहा है वो हो भी सकता है. कुछ फैक्टर 9 व्हाट इज द $59 point 39 point के हैं. जस्ट अ मिनट. One point eight. Let me just check the value. Hmm. 1.17 into, sorry, 7 volt into 2
divided by 0.0591. Yeah, 56. Then minus 4. 55. Okay, okay. Just a minute. Just a minute. Let me just go through. इसमें कुछ values में वो है. Let me just check it. This is coming out to be 39.59 minus 4. So it is coming out to be 35.59. Right. ठीक है, 38.59. So that can be done. So approximately 36 मान के चलो. So it can be there. Yes, no problem. कोई बात नहीं. Let me correct it. Let me correct it. So it is K equilibrium 10 to the power 36. Approximately one can say. Yes. Okay. Yes, नीतू जी आप बताएं 1 मिनट में. Let me just. Yes. गुड मॉर्निंग सर. Yes. सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपने ई नॉट का वैल्यू 1.17 रखा है जबकि वैल्यू 1.71 है क्वेश्चन में. क्या 1 point? सर आपने 1.17 रखा है एंड क्वेश्चन में 1.71, तभी वैल्यू डिफर कर रहा है. वो कोई बात नहीं. वो दैट्स नॉट. इसलिए तो मैंने कहा है ना कि जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं आई कैन मॉडिफाइड इट इन एनी फॉर्म, है ना. तो मैंने 1.17 लिया है तो उसका वैल्यू जो है मैंने करेक्ट कर दिया था. इसलिए मैंने देखो मेरा 54 आ रहा था, वो कहीं ना कहीं वहाँ गलत हो रहा होगा. तो मैंने उस वैल्यू को मैंने डायरेक्टली नोट नहीं किया है, मैंने अपने हिसाब से लिखा था. तो 1.17 जैसे आ गया, ठीक है. तो उस वैल्यू से मैंने निकाल दिया है, वो वैल्यू मैंने करेक्ट कर दिया है. और आप इसी मेथड को सेम मेथड यूज करके जैसे आपने अभी करेक्शन किया है कि 1.71 की वैल्यूज हैं, तो आप उसी हिसाब से 54 आएंगे. ठीक है ना मिश्रा? हेलो. Is there any confusions? I hope you don't need to worry about it. Value जो है, right? Yeah. No sir, clear. मोनिका क्या कह रही है? ठीक है. I already have told you the values. If you are using 1.71, then you will be getting 54. That can be done. और यहाँ आपका मैंने 1.17 लिख दिया था, तो उस हिसाब से वैल्यू जो है मैंने करेक्ट कर दिया है. ठीक है. I have done the correction that you have got this much value. Okay. So no problem. You need to have the actually the technique to calculate it. So value is not important for understanding. Yes, for the exam you have to be very accurate about your calculation. Yes. यूनिट का क्या होगा? क्या इसमें यूनिट नहीं होगा? ठीक है. इक्विलिब्रियम में रेशियो की कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट नहीं होता है.
ठीक है। सो ये नहीं सुनेंगे। ओके, ठीक है। सो okay, now let us go ahead with the another reactions. So let me also talks about this one is little new questions. So let us see, determine the stability. So determine the stability constant of the formation of cupric amine complex when the standard EMF of the cell copper ion copper complex okay is equals to 0.35 volts at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius. Now I am using the different words. Stability constant. Okay. So stability constant, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें एक्चुअली अलग टाइप की इक्वेशंस आएगा, ठीक है। सो that's why I use this particular equations to understand कि है सेम ही मेथड और सेम ही प्रोसेस बट डिफरेंट वर्डिंग यूज हो सकता है। सो नाउ एज यू हैव सीन दिस रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना यूज होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहा है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स इज यूजिंग। नाउ E standard cell is equals to RT upon NF ln K equilibrium, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। नाउ इन द रिएक्शन यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी constant is equal to equilibrium constant. So you have to talk about stability constant is equals to the equilibrium constant, sorry, equilibrium constant, ठीक है, at equilibrium. Whenever these reactions taken place at equilibrium, at this point of time the equilibrium stability constant is equals to the equilibrium constant. Okay, so that is what more important points to understand the reactions. Now what is the stability constant? How do we calculate it? First we have to understand the half cell reaction. So you have to talk about, one is लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग टू गेट कॉपर आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। सो दिस हैज बीन हैपनिंग ऑन एनोड बिकॉज आपके पास सेल दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। सो कॉम्प्लेक्स इज गेटिंग 2 electrons to convert into copper and ammonia. ये हो रहा है आपका एनोड में, कैथोड में। So by using this concept,
आप ये रिएक्शंस को कैसे बना सकते हैं, ये एक रिडक्शन है, या सॉरी ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, तो दोनों को सम करेंगे, आयरन की कॉमन टर्म निकाल दो, कॉपर की कॉमन टर्म निकाल दो, सो इट्स नथिंग बट द कॉपर complex is dissociating to copper ion in 4 ammonia. Okay, now this is the reaction where you are getting as per the cell में जो लिखा गया उस हिसाब से इस रिएक्शन को लिखा गया है। सेल में जो गिवन है आपका अमोनियम कॉम्प्लेक्स राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर है। सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर reaction is written in the form of the information given in the cell. So in this process, stability constant of the formation of cuprate amine complex is represented by Ks. Suppose let us say this reaction is represented by Ks. ठीक है, and formation of complex is represented by the what? ये जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इसकी फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिवर्स होगा क्योंकि बनाने वाला होना चाहिए, यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है ना रिएक्शन, ये है फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉपर +2 इसकी रिवर्स होंगे, इसकी रिवर्स होंगे, सो कॉपर बनाने का, कॉपर अमीन बनाने का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट योर फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो नाउ हमारा ये रिएक्शन का दे रखा है आपका E स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू 0.35 वॉल्स, क्योंकि उस सेल की अकॉर्डिंग जब हमने फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स बनना है तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये तो रिवर्स हो गया। सो ई स्टैंडर्ड जो सेल है, ई सेल जो है, ई स्टैंडर्ड सेल जो है बिकम माइनस ऑफ 0.35 वॉल, क्योंकि मैंने रिवर्स में लिखा है, ऑपोजिट में, वैल्यू उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर at 25 degrees Celsius or 298 Kelvin, E standard cell is equals to 0.0591 upon 2 log Ks, ठीक है, या इक्विलिब्रियम जैसे भी चाहे, Ks जो है वो हम स्टेबिलिटी फॉर्मेशन में लिखा जाता है, ठीक है। सो नाउ दिस विल बिकम minus 0.35 volts equals to 0.0591 upon 2 log Ks, क्योंकि हमने Ks निकालना है, राइट। सो therefore you can say log Ks is equals to minus 0.35 into 2 divided by 0.0591, which is equals to minus 11.84, minus 11.84, ठीक है। सो इसकी वैल्यूज होगा Ks is equals to 7 into 10 to the power minus 11, ठीक है। This is the value, this is the value of your the stability of stability constant of your formation of cuprate, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रेट निकालना था, इसीलिए मैंने डिकम्पोजिशन से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है दिस रिएक्शन, ओके। सो दिस इज द वैल्यू व्हिच यू गेव, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट way to calculate the K value. Yes. Yes.
हाँ, आप चाहे तो -12 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू अप्रोक्सीमेटली राइट -12 इज फाइन, कोई इशू नहीं है, उतना ही वैल्यू है। ठीक है, आप जो है फ्रैक्शन की वैल्यू निकालना चाहे फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम बेटा, कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मैंने अलग अलग निकाला है। आप देखो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दे रखा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू की कॉन्सेप्ट से उसको कन्वर्ट करो, नहीं तो आप एक्यूरेट निकालना है तो एक्यूरेट की फॉर्म में भी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कंफ्यूज उसमें होना नहीं चाहिए। देखो आप में -12 है, -12 की दे रखा है, ये क्यों -11 है, -11 का 7 कितना होता है पता है आपको, है ना? आप अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा इसमें भी, आप कंफ्यूज इतना क्यों है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। ये 10⁻⁻12 है, ठीक है, और ये कितना आ रहा है, ये कितना -11 है, इसका मतलब है 0.000007। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है 0.000000, ठीक है, 1, राइट। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। यहाँ 12 वाला जो है उसमें 7 रहेगा और यहाँ 12 वाले में 1 रहेगा, दैट इज द इशू। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। मैं अप्रोक्सीमेशन कई जगह करता हूं क्योंकि वहां क्वेश्चन की आंसर उस हिसाब से दे रखा है, तो आप चाहे तो अप्रोक्सीमेटली उसमें लिखिए, एक्यूरेट निकालना है एक्यूरेट निकालने। सी आई हैव टू गिव यू, आपको मैंने समझाना है, आपको मैंने ये समझाना है कि भाई देखो अलग अलग वे में क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग वे में आंसर की रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, इसलिए आपको मैं समझाने की वही कोशिश कर रहा हूं। मैंने अलग अलग क्वेश्चंस क्यों दिया है, सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बट अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वे से उसको एक्सप्लेनेशन कर सकता है। ठीक है, वैल्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो या रिएक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो या आपकी जो आंसरिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें। ठीक है, यस। Can you, sir, can you question explain this question? Questions को explain, क्वेश्चन का मतलब ये है, देखो क्वेश्चंस में जो है फॉर्मेशन स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द क्यूपरेट, फॉर्मेशन है ना, है, और व्हेन द स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल दे रखा है, सेल के वैल्यू भी दे रखा है। जब हमने इस सेल के हिसाब से कि सेल में देखो कॉपर मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, यहाँ कॉम्प्लेक्स का वो है इलेक्ट्रोड है, तो जब हमने कॉपर लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर कॉम्प्लेक्स रिड्यूस हो रहा है राइट साइड में, उसका मैंने लिखा, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आया, ये देखो कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोज हो रहा है, आप देखेंगे ये रिएक्शन डिकम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन जो है ये कॉपर आयन और अमोनिया दे रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये तो फॉर्मेशन है ही नहीं, है ना, मगर निकालना हमने फॉर्मेशन का है। तो हमने क्या किया था, इसकी वैल्यू जो दे रखे हैं वो तो आपका डिकम्पोजिशन का दे रखा है क्योंकि सेल की दे रखी है, सेल की पोटेंशियल दे रखा है ना, सेल की पोटेंशियल दे रखा है, तो मैंने उसको ऑपोजिट में, उसकी ऑपोजिट में रिवर्स किया रिएक्शन को, तो रिएक्शन जो है फॉर्मेशन निकला। फॉर्मेशन जब किया तो उसकी वैल्यू भी तो रिवर्स होंगे, जब आपने टर्मिनली चेंज कर दिया है तो इसकी रिवर्स हो जाएंगे, वैल्यूज माइनस हो जाएंगे, तो माइनस को मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया है। ठीक है, राइट। सो दिस फॉर्मेशन को मैं के एस की वैल्यू में जाना जाता हूं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट मैंने यहां यूज करके ई के साथ रिलेशन लिख के वैल्यू को फाइंड आउट किया है। ठीक है, यस। नाउ those who want to ask the questions, they can raise your hand and I want to discuss it because I have to go to another part जो इस स्टडी में ऑलरेडी मैं कर चुका हूं ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो बिफोर आई गो, those who want to ask the questions,
ठीक है, राइज योर हैंड। इफ एनीवन इज देयर। यस, हाँ बताइए कल्पना। हेलो सर। यस, सर ये वाला क्वेश्चन मुझे बुकलेट में नहीं मिल रहा, तो सर ये आपने खुद ने करवाया है, फिर कौन से ईयर का ये बता दीजिए सर अरे प्लीज। बच्चे आप लोग एयर के पीछे मत पड़ो, बार बार आपको कह रहा हूं, आप सिर्फ क्लास में ध्यान दो। जो क्वेश्चंस आप खोजने में समय लग जाएंगे, और वो जो भी आप मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं, उसमें आप ध्यान दो। आप ओके खोजो सर। मत। जहां जहां मैं बोलूंगा कि बच्चे आपकी बुकलेट खोलिए और बुकलेट का ये नंबर है, जब मैं बताऊंगा तब आप अपना देखना। हाँ, हालांकि एवरी क्लास में जब आओगे ऑनलाइन में, अपना बुकलेट साथ में जरूर रखना। कोई जरूरी नहीं है मैं बार बार आपको क्वेश्चन बता के करूं, मैं अपना क्वेश्चन लिख के कर सकता हूं। मैं अपने हिसाब से आपकी जितनी नॉलेज होना चाहिए वो क्वेश्चंस को मॉडिफाइड करके, जैसे भी करके मैं आपकी नॉलेज को बढ़ाने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग क्वेश्चन इधर उधर के पीछे मत पड़ो। कैलकुलेशन में, अंडरस्टैंडिंग में कोई समझ कम है और उसमें प्रॉब्लम है, वो आप पूछो, ठीक है। नेक्स्ट सालू। हाँ सालू कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, फटाफट बताइए क्योंकि। गुड मॉर्निंग सर। यस। सर आपने जो सेकंड वाला क्वेश्चन करवाया था, हाँ उसमें के ई क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो के ई क्यू तो इक्वल्स टू क्यू होता है, तो डायरेक्टली वो जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज फाइंड की है वो क्यों नहीं पुट कर दिया? बेटा देखो, ऐसा है सालू, यस सर। ये के क्यू का वैल्यू ऑलवेज इक्विलिब्रियम के साथ इक्वल नहीं होता है। मैंने आपको नर्स इक्वेशन के समय में भी पढ़ा दिया है, वो चीजें आप नोट को ध्यान से देखो कि ओनली एट इक्विलिब्रियम क्यू का वैल्यू इक्विलिब्रियम के साथ इक्वल होता है, ठीक है। यस सर। तो हमने हमने जो निकाला है क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू हमारी उस रिएक्शन में जो निकाला है वो आप कह सकता है कि इक्विलिब्रियम के साथ है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्यू का वैल्यू हमने नर्स इक्वेशन के थ्रू निकाला है, ठीक है। हमने नर्स इक्वेशन के थ्रू निकाला है, इसलिए दोनों जो है क्यू का वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर हो सकता है। समझ में आए? तो हमारा क्यू निकालने के बाद हमने नर्स इक्वेशन को यूज किया, नर्स इक्वेशन को यूज करके हमने उस कॉन्सेप्ट को लिया है, ठीक है। इसीलिए वहां पे डिफरेंट आ रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, एनी अदर पर्सन want to ask the question? Okay. Right. Okay. Then let me go ahead. और भी क्वेश्चन है, आप अपना असाइनमेंट चेक करें और आप लोग उसको कोशिश करें करने का, अप्लाई करने का। कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दीजिए, नो प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस whenever you know tell me, because I have done almost 5-6 different question, so I don't think कि इसमें बहुत ज़्यादा और कराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट मी ऑल्सो टॉक अबाउट अदर important aspect, ठीक है। So next is the determination of stability, the solubility. So next point is determination of solubility and solubility product. ये भी बड़ा important एग्जाम के लिए टॉपिक है, solubility product, ठीक है। solubility product. Now solubility product and solubility क्या है, ये थोड़ा कुछ आपने नॉलेज लिया होगा। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी क्या होता है? सोल्युबिलिटी जो है, सॉरी, सोल्युबिलिटी, ठीक है,
LU. Solubility is nothing but the molality of a saturated solution, ठीक है, saturated solutions, right? So ये concentration term को represent करता है. Now आप कह सकता है कि भाई सर solubility molality जो है saturated solution का कब आएगा? Solubility equilibrium जो है कहाँ exist होता है, इसमें depend करता है when chemical compounds in the solid forms are in the chemical equilibrium with its ion. ठीक है, आयन में सॉल्यूशन में जो आयन है और जो सॉलिड सब्सटेंस है उसकी बीच में जब इक्विलिब्रियम होगा तब आप कहेंगे कि देयर इज अ सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम. सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको समझने की जरूरत है. जनरली सॉल्युबिलिटी concept comes into when the sparingly soluble salt like silver chlorides are in equilibrium. So for example, I am just giving you an example. This is a solid है. Now I am considering the silver ion बन गया है solution में और chloride ion भी है. Now दोनों ion और solid के बीच में equilibrium है. Now इस stage में इसको हम कहते हैं solubility equilibrium. Solubility equilibrium क्या है? Solubility equilibrium is the chemical compound or species in the solid state is in chemical equilibrium with its ion in the solution. समझ गया ना? तभी हम कहते हैं कि solubility. तो अब इसका concentration जो है इसको हम कहेंगे solubility. There is a molality of saturated solution. इसको हम कहेंगे. तो इसका जो है S है, इसका S है, solubility है इसका, ठीक है, आयन का. That is also measure as a molality. Okay, so molality concept में यहाँ हम ले सकते हैं, ठीक है. So whenever we talk about these particular concept, solubility, so when we talk about when such equilibrium exists, the solution is said to be saturated. जब ये इक्विलिब्रियम रहेंगे तो हम इस स्टेज को कहेंगे कि सैचुरेटेड. अब सैचुरेटेड को कैसे समझेंगे? सपोज आपने क्या किया है, सोडियम क्लोराइड लिया सपोज, और सोडियम क्लोराइड को आपने एक ग्लास में पानी में डिसॉल्व किया. शुरू में थोड़ा सा डाला, वो डिसॉल्व करता गया, उसके बाद और डाला एंड आपने जितना सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता था डालता रहा. लास्ट में जब एक और चम्मच डाला उसमें कुछ डिसॉल्व हो गया, कुछ डिसॉल्व नहीं हो पाया. इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम डिसॉल्व हो चुके हैं और थोड़ा कुछ सॉलिड इसलिए बचा है कि वो उससे आगे डिसॉल्व नहीं कर सकता है. उस स्टेज को हम कहते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, कोई भी कंपाउंड, उस स्टेज को हम कहते हैं सैचुरेटेड. बट वही सेम सिचुएशन स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट में होता है कि वो थोड़ा सा ही सही जब वो डिसॉल्व करेंगे तो आधा कुछ बचेगा और आधा डिसॉल्व होगा. तो जैसे सिल्वर क्लोराइड के केस में ये स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट है, तो जैसे ही वो आयनाइज करेंगे, डिसॉल्व करेंगे वाटर में, वो थोड़ा कुछ आधा डिसॉल्व होगा, आधा डिसॉल्व नहीं होगा. तो उस सिचुएशन को हम इक्विवेलेंट करते हैं सैचुरेटेड कंडीशन के साथ, ठीक है. So therefore this solubility concept comes into sparingly soluble salt, ठीक है. So जो भी सैचुरेटेड कंडीशन में आपका एक्टिविटी जो है वो क्या होता है? मोलालिटी के साथ इक्वल होता है. That means your solubility is equal to your molality M. Solubility is equal to molality, right, of whatever ion, ठीक है. और आपको पता है एक्टिविटी ऑफ द सॉलिड स्टेट इज 1, लिक्विड का 1 होता है, ठीक है. ये मोलालिटी की कॉन्सेप्ट में भी आप ले सकते हो या सोलुबिलिटी कॉन्सेप्ट में आप ले सकते हो. दैट कैन बी यूज इट. ओके, सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ द इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयन एंड द सॉलिड स्टेट, ठीक है, इक्विलिब्रियम में जब रहते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं इसका सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है. तो solubility product is generally denoted by KSP,
that is nothing but solubility product. ठीक है, solubility product. Now solubility product is nothing but the product of concentration लिखो पहले, activity लिखते हैं, activity यूज की है. So let me use activity. A सिल्वर, बार एक ही है, कंसंट्रेशन भी यूज कर सकते हो, क्लोराइड. ठीक है. सो these activities are equals to activity of the silver is equals to S. Activity of chloride ion is equals to S. Solubility है, ठीक है, या मोलालिटीज है. ठीक है. Now this will equals to क्या होगा, S into S, so it become S square. ठीक है. This is what we generally talk about the solubility product value. ठीक है. अब इसमें why I write only the molality, because activity is generally equals to the solubility, what I can say, molality into activity coefficient also. ठीक है, activity coefficient, क्योंकि solubility concept में solubilities are generally low in such sparingly soluble salt, so इसीलिए आपका ये जो activity coefficient है वो always 1 होता है, always 1 होता है, activity constant. So therefore activity is equals to generally the solubility, or you can say molality. ठीक है. Is it okay? Yes. So let me complete it. So therefore the solubility is equals to root over KSP. ठीक है. You can say what is the unit of the solubility? Unit of the solubility will be mole per liter, और mole per dm3. वही है मोलालिटी वाला. ठीक है, कॉन्सेप्ट, राइट. So this how you can use solubility product, and solubility you can already talk about it. Now using this you can even calculate the cell potential. Standard cell potential equals to RT upon NF ln the equilibrium, क्योंकि वहां पे भी इक्विलिब्रियम है, solubility product solubility में भी equilibrium reaction है. So therefore this will be represent as NF ln KSP. ठीक है. So at 25 degrees Celsius the standard E cell is equals to 0.0591 upon N log KSP. So this way you can already talk about, once you know the E potential, then you can calculate the KSP also. ठीक है, KSP आप निकाल सकते हैं, right? Solubility product can be calculated. Clear? So let me talk about other general concept. Suppose it depends on the salt, कि किस salt की रेशियो है, solubility कितना आएगा, वो सब निकाल सकते हैं. Now we generally talks about MX. MX is what? The univalent electrolyte, या आपका जो है salt है. ठीक है, electrolyte से better one can use salt. Okay, so like silver chloride, हमने क्या निकाला? हमने निकालना कि MX giving M plus and X minus. So KSP is equals to the concentration of M plus and X minus, which is equals to solubility of an ion, that is solubility square. So solubility is equals to root over KSP. KSP निकालना है तो स्क्वायर ले लेंगे solubility का. सेकेंड, हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट लेंगे. ये है MX2.
mx2 ले लेंगे तो mx2 का क्या होगा? सॉलिड mx2 मीन्स m2 cos प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस, ठीक है। सो Ksp is equals to the S concentration into twice of S to the power of 2, ठीक है। So that means S into 4s square, that is 4s3, ठीक है। ये भी हम यहां से निकाल सकते हैं। तो इसका हम निकाल सकते हैं, s भी निकालना है तो क्या होगा इसका? Ksp अपॉन 4 टू द पावर ऑफ 1/3, ठीक है। ये हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए कैल्शियम फ्लोराइड, है ना। कैल्शियम फ्लोराइड की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ एफ। आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, कोशिश करके देख लेना आफ्टर द क्लास, ठीक है। सेम रिजल्ट आया नहीं आया है, दैट यू कैन चेक। थर्ड, we can talk about mx3, okay। So m3 plus thrice of x, okay। So again solubility is s, ये है 3s, ठीक है, 3s। So Ksp is equals to पहले में m3 एंड ये लिखना है आपको x to the power of 3। So this is nothing but s into trie of s to the power of 3। So कितना आएगा? 27s4 to the power of 4। So therefore Ksp is equals to 27s to the power of 4, right? Then fourth, let me talk about another complex, another salt, x3। इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको मैं अभी बताता हूं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। टू अ थ्राइस ऑफ x माइनस 2। सो ये ट्वाइस ऑफ s हो जाएगा, ये आपका थ्राइस s हो जाएगा। जो Ksp is equals to twice s to the power of 2 thrice s to the power of 3। So इसका आएगा 4s square plus into 27 s to the power of 3, that is 108 to the power of 5, ठीक है। So that you can easily do all this calculation, ठीक है, all this calculation। Now let us try to apply these। इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट थ्रू सेल पोटेंशियल के साथ। तो नाउ सिल्वर क्लोराइड्स डिसोसिएट इनटू सिल्वर आयन प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है। सो नाउ Ksp कितना आ रहा है? एक्टिविटी ऑफ सिल्वर इनटू एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड, ठीक है, या कॉन्सेंट्रेशन चाहे कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, देयर इज नो प्रॉब्लम्स। सो E इक्वल्स टू E स्टैंडर्ड, E इक्वल टू E स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT अपॉन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन यूज है, F log Ksp। नाउ एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट यूज किया है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज इक्वल्स टू 0, E इक्वल्स टू 0। सो योर वैल्यू इज E स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन F
log KSP, है ना। इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ये आ गया, ठीक है। आप इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हो, आपका जो वैल्यूज हैं, KSP निकालना है तो इससे डायरेक्ट कर सकते हो। KSP इज नथिंग बट F into E log F into E 3.303 RT, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज हैं complex. So once you know standard potential, you can calculate the KSP. Okay. So now let me talk about question. ये है GATE 2013 की questions हैं, GATE 2013. Now a sparingly soluble electrolyte that is M2X ionized as M2X twice of M and X to the power of -2, ठीक है। ऐसा आयोनाइज हुआ है। अब नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन solubility, what is the relation between solubility, ठीक है, solubility product that is KSP and molar solubility S and molar activity coefficient, ठीक है, coefficient. Now how to solve these problems? Now first you have to write the reaction. आपको पहले रिएक्शन लिखना है, M2X twice of M X to the power of 2, ये रिएक्शन है। Now when activity A is 1, क्योंकि ये सॉलिड है, यहाँ क्या होगा, एक्टिविटी M प्लस एक्टिविटी X -2, ठीक है। पहले इसको लिखना है आपने। अब नाउ एक्टिविटी इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्टिविटी इज इक्वल्स टू solubility इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ठीक है। एक्टिविटी कोएफिशिएंट, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट में भी लिख सकते हैं। अभी मैं इसको भी अभी पढ़ाऊंगा, इफ पॉसिबल टुडे ओनली, नहीं तो आई विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास। सो एक्टिविटी ऑफ M आयन, एक्टिविटी ऑफ M आयन नथिंग बट कितना मिलेगा, ये ट्वाइस है ना, ट्वाइस S प्लस माइनस एक्टिविटी ऑफ X -2, इसका मतलब कितना हुआ, S प्लस माइनस, ठीक है। सो देयरफॉर KSP is equals to AM positive to the power of 2 AX -2 minus to the power of -2. So it is nothing but 2S plus minus to the power of 2 into S activity coefficient. So that is nothing but कितना मिलेगा, 4 और 3, ये कितना मिलेगा, 4S3 plus minus to the power of 3, ठीक है। So therefore KSP is equals to 4S3 activity plus minus to the power of 3, ठीक है। So this is your answer, जो आप
बुकलेट में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर आंसर, राइट राइट। सो लेट मी टेक few doubt if you have, then yeah, ठीक है, आप लोगों ने जो लिखा है वो रेस्पॉन्स के साथ लिखा है, so no problem, ठीक है, good. So if you have any doubt, you can raise your hand before I proceed for the reactions. If somebody has any doubt, then raise your hand. For S3, हाँ, yes, you can do that. मोनिका, आप लिख सकते हैं, और एक्टिविटी कोएफिशिएंट आपकी 1 होगा तो आप 4S3 भी लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली, ठीक है। यस, कोई डाउट नहीं है, सो शुड आई प्रोसीड? Okay, so let us talk about the questions. इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी गेट का 2003 का क्वेश्चन है, गेट, ओके, राइट। सो डिटरमाइन the solubility of solubility product of silver chloride at 25 degrees Celsius from the two half cell reaction। देखो, कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है कि हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, नंबर 1 सिल्वर क्लोराइड टेक 1 इलेक्ट्रॉन और सिल्वर सॉलिड बना है और क्लोराइड आयन बना है, और ई स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 0.22 बॉल है जो गिवन है। बी में है सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन लिया है और सिल्वर सॉलिड बना है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.80 है बॉल, ठीक है। तो इसमें आप बेसिक हमारा जो हमने स्टडी किया है वो लगा सकते हैं। तो हमारा बी जो है, बी इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ज़्यादातर ये रिएक्शन हो सकता है, इसका जो है राइट में रखें, और ए जो है इसमें पोटेंशियल 0.22 है वो लेफ्ट में रखें, ठीक है। बट हमको जो निकालना है वो एक्चुअली किस रिएक्शन की फॉर्म में निकालना है। हमको निकालना है कि आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो हमारी हाफ सेल को हम कैसा लिखेंगे, इससे हमारा रिएक्शन आ जाए, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन चाहिए क्या, रिएक्शन चाहिए सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज हो आयन में, है कि नहीं है। हमने अभी तक जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है ना कि आपका इक्विलिब्रियम होना चाहिए आयन के साथ, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो हमको चाहिए ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम कैसे ला सकता है अब से, कैन समबडी टेल मी कि जो रिएक्शन हमारा जरूरत रिएक्शन है वो कहां से हम ला सकते हैं अब इंफॉर्मेशन से। हाउ डू आई डू? यस, 1 - 2
1 माइनस 2, ओके, वेरी गुड, 1 माइनस 2, इसका मतलब ए माइनस बी, सॉरी बी माइनस, सॉरी ए माइनस बी। आपका रिएक्शन ए है, ए रिएक्शन से माइनस बी रिएक्शन कर दो, ठीक है, ए रिएक्शन से बी रिएक्शन को माइनस कर दो, तो आपका जो है ये कॉन्सेप्ट आ सकता है, समझ गया ना। सो हमारा रिएक्शन आएगा सबट्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन बी फ्रॉम द ए, सो आई कैन से द सबट्रैक्शन of reaction B from the reaction A, right? So that means A reaction है silver chloride get 1 electrons to convert into silver and chloride ion, ठीक है। B को माइनस करना है, सो मैंने माइनस B को हमने माइनस करना है, सो माइनस B है, इसका मतलब हुआ सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन्स तो सिल्वर, ठीक है, ये दोनों को हमने माइनस करा है ना, माइनस किया, तो ये तो आपका सिल्वर इधर आएगा, सिल्वर आयन उधर जाएंगे, ठीक है, तो कॉमन टर्म कैंसिल होगा, सिल्वर सिल्वर कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो बचेगा ये, एक बचेगा ये, एक बचेगा ये, ठीक है ना, ये रहेंगे राइट हैंड साइड में, ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में सिल्वर का सॉलिड बचा, और इधर जो है क्योंकि ये माइनस में है तो इधर राइट में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, सो ये और ऊपर क्लोरीन बचा, बाकी कॉमन टर्म में कैंसिल हो जाएगा, सो ये रिएक्शन जो हमारा रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो आ गया, इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। नाउ हम इस रिएक्शन की इंफॉर्मेशन से क्या निकाल सकते हैं, ई स्टैंडर्ड सेल निकाल सकते हैं। ई रिएक्शन सेल जो है कैसे निकलेगा, ई ए तो है ए माइनस आपने बी माइनस किया था ई बी, है ना, रिएक्शन में ये कैथोड एनोड की कॉन्सेप्ट में आप ले सकते हो, बट आई एम यूजिंग टर्म ए एंड बी रिएक्शन की फॉर्म में। सो ए में का कितना वैल्यू है, ए का है 0.22 वोल्ट वैल्यू है, माइनस 0.8 वोल्ट की वैल्यू है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 0.58 वोल्ट्स। सो ये रिएक्शन तो क्या लग रहा है, रिएक्शन माइनस आ रहा है तो नॉन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस लग रहा है, ऑब्वियसली इट इज ए नॉन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस, बट हमको निकालना है यही, क्योंकि हमारा रिएक्शन जो रिक्वायर्ड है वो यही चाहिए, इसलिए हमको इसको स्टडी करना है, तो आपको लाना ही है इस रिएक्शन को, ठीक है। सो एट 298-25 डिग्री सेल्सियस आपका जो ई स्टैंडर्ड जो है सेल जो है इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन एक यूज हुआ है, लॉग के एस पी है, ठीक है। अब नाउ आपका वैल्यू जो है लॉग के एस पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू, standard E upon 0.0591, so that is minus 0.58 volt upon 0.0591, that is the minus 9.8, so KSP हमारा जो वैल्यू है वो आ गया है 10 to the power minus 9.8, ठीक है, there is nothing but 1.58 10 to the power minus 10, ठीक है, सो ये वैल्यू आया होगा आपके आंसर में, ठीक है।
So this is how you can get. Clear? Yes. किसको कुछ डाउट है? जो डाउट है वो आप हाथ राइज योर हैंड. Okay. So I hope there is no doubt. So let me go ahead. So let us talk about another questions. Okay, so let us see the solubility product. This will be a little different. Solubility product KSP of silver sulfate at 25 degrees Celsius is 1 into 10 to the power minus 5. Calculate the standard reduction potential of the half cell reaction, that is silver sulfate take 2 electrons to convert into twice of silver plus sulfate ion. ठीक है? When the standard reduction potential of the half cell reaction, that is silver take 1 electrons to convert into silver, is 0.80 volt. ठीक है? अब ये थोड़ा सा अलग है, बट इंफॉर्मेशन सिल्वर सोलबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, सो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है? इसमें भी आपको सारे रिएक्शंस देखने हैं. रिएक्शंस क्या है? सपोज द नंबर 1 रिएक्शन इज सिल्वर आयन गेट इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट इनटू सिल्वर. ठीक है? सो इसका आपका ई स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है ए रिएक्शन का 0.8 वोल्ट है. बी जो हमको चाहिए क्या है? सिल्वर sulfate take 2 electrons to convert into twice of silver and sulfate ion. ये है B 0. सॉरी, इसका हमने पता लगाना है. ठीक है? अब नाउ इन दोनों रिएक्शन को हमने करना कैसे है? ठीक है? अब ना सबसे पहले क्या होगा? बैलेंसिंग होगा. बैलेंस क्या होगा? दोनों में आप एक तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा. ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा ट्वाइस ऑफ सिल्वर, 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट इनटू सिल्वर. ये ए जो है ये हो जाएंगे. अब बी जो है
सिल्वर, अब इलेक्ट्रॉन वैलेंस हो गया है, यहाँ पे भी 2 आएगा, सॉरी, सल्फेट। ओके, नाउ पोटेंशियल में सेम होगा, पोटेंशियल विल बी द सेम, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, मल्टीप्लिकेशन कोई करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो रिएक्शन ए को रिएक्शन बी से सब्सट्रैक्ट करो, रिएक्शन ए जो है रिएक्शन बी से, सो मैं क्या किया हूं, माइनस इसमें कर दिया, ठीक है। तो क्या आ सकता है, यस, somebody have raised the hand, सालू जी बताइए, ये सालू, सर मैंने रेज हैंड नहीं किया है। अरे then I have seen somebody have raised your hand, ठीक है, anyway no problem, let me continue, कोई बात नहीं। सो हमने क्या किया है, हमने ए रिएक्शन को बी से माइनस किया। आप पूछ सकते हैं सर क्यों, क्योंकि देखो सल्फेट, सिल्वर सल्फेट जो है वो आयोनाइज कराना है, क्योंकि जब आपका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट देंगे तो वो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में क्या है, सॉल्ट को हमने आयोनाइज कराना है। सो आयोनाइज फॉर्म में लिखने के लिए मेरे को ये वाला चाहिए, ठीक है। तो जब माइनस किया है तो ये जो ऊपर का रिएक्शन है इसमें सब माइनस होंगे, तो आपका आयन जो है वो राइट में जाएगा और आपका सॉलिड है वो लेफ्ट में आएंगे। तो सॉलिड सॉलिड कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, आयन आयन कैंसिल हो जाएंगे, तो सिल्वर 2SO4 gives twice of silver ion and SO4 minus. So now it become dissociation. So it become dissociation. So this is the reaction for your solubility product. Solubility product के लिए आपको चाहिए ये, ठीक है। So therefore your solubility product is what? Therefore your solubility product of this reaction is equals to, क्या कॉन्सेप्ट में आ सकता है, ये आपका क्या आएगा बताइए, वैल्यू 1.010 to the power -5 है, और इलेक्ट्रॉन्स हमारा 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया गया है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। सो एट 298 केल्विन क्या होगा, ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 log KSP, log KSP, ओके। सो हमने क्या निकालना है, हमारा ये भी है कि स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल्स टू ई क्या है, ई बी से हमने माइनस किया है ई ए को, क्योंकि रिएक्शन में क्या किया था हमने, बी से ए को माइनस किया है, तो दिस इज द वैल्यू, ओके। सो नाउ यू नो ई बी तो पता नहीं था, ई ए का वैल्यू कितना है, 0.80 वोल्ट है। सो यू कैन पुट दिस वैल्यू हियर, आप यहां पे पुट करें, तो ई स्टैंडर्ड बी माइनस 0.80 वोल्ट इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 log KSP. So that means your EV is equals to 0.80 volt minus plus 0.0591 upon 2 log KSP का वैल्यू कितना है, 1 into 10 to the power -5। सो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.80 वोल्ट प्लस 0.591 into -5 into -5। So therefore this will be coming out to be, कितना वैल्यू आएगा, 0.8 minus 0.148, that is equals to 0.6
0.52 volt. So your E standard B is equals to 0.652 volts. So this is what your half cell potential. So ऐसा नहीं है कि हाफ सेल पोटेंशियल नहीं निकाल सकता है फ्रॉम द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. किसी को समझ में नहीं आया है तो बता दो. अभी हमारे पास 10 मिनट है. सो आई वांट टू टेक योर क्वेश्चंस. ठीक है. स्वाति, आपकी क्वेश्चंस मेरे को नहीं समझ में आया है. आप हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं. किशोर have raised hand. Yes, Kishore, you can speak. Hello, sir. Hello, sir. Hello. Yes, Kishore. Hello, sir. Yes, क्वेश्चन yes. सर हमने क्वेश्चन में Ag रिएक्शन लिया है ना, वो Ag2CO4 + 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्विलिब्रियम क्वेश्चन निकालो ना. उस पे प्लस चार्ज नहीं लिखा ना. प्लस चार्ज लिखा है वहाँ पे. Let me just check. कौन सा वाला क्या कह रहे हैं? सॉरी सर, वो अगला है ना, प्लस CO4 2 माइनस है. मेरे को लगा ऊपर है वो. सॉरी. ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके. एनी अदर? Yes. Now, any other questions? Now, Swati, you can ask me the questions. Yes, Swati. हेलो सर. Yes. सर जो ये रिएक्शन है ए बी, ये हमें क्वेश्चन में दी होगी या हमने खुद बनानी है ये? क्वेश्चन में ए बी करके दे सकता है, नहीं भी देते हैं तो हम खुद बनानी है. जैसे लास्ट क्वेश्चन आए थे अभी एक तो पहले, उसमें आपने अपने आप बनाई थी. एक बार वो बताओगे वो रिएक्शन आप कैसे बना रहे हो जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगा रखे हैं ना? हाँ, जैसे ये है ना, ये गिवन है. जैसे आप देखो, ये जो लास्ट अभी देख रहे हैं आप मेरे स्क्रीन में. हाँ जी सर. जैसे ये रिएक्शन है लास्ट में. नाउ दिस रिएक्शन इज गिवन. उसने कहा कि एक हाफ सेल है जो इस रिएक्शन देता है, उसका पोटेंशियल इतना है. तो हमारे पास एक और हाफ सेल है जो इसका निकालना है हमने पोटेंशियल. ये ऊपर भी दे रखा है. तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है. तो हमने ये निकालना है कि दोनों मिल के कौन सा सेल बन सकता है, उससे हमारा रिएक्शन आ जाए. कौन सा रिएक्शन? ये वाला. ये दिस इज द रिएक्शन विच वी रिक्वायर्ड. दिस इज द रिएक्शन जो हमको रिक्वायर्ड है, क्योंकि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स दे रखा है. तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयोनाइज हो रहा है ना. तो ये जो सिल्वर सल्फेट की आयोनाइजेशन रिएक्शन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने उसके लिए स्टडी करना है. और जो हमारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स दे रखा है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफ दी सिल्वर सल्फेट का रिएक्शन जो होगा वो यही वाला रिएक्शन होगा. तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही ये रिएक्शन को स्टडी करना है कि ये जो गिवन रिएक्शंस हैं उसमें से कौन सा टर्मिनल से माइनस नहीं तो प्लस करके हम इस रिएक्शन को आ सकते हैं. तो हम ए
बी या 1 2 जैसे भी आप चाहें नोटेशन रख के उसको कौन सा लेफ्ट में रखेंगे कौन सा राइट रखेंगे, उससे मैं माइनस करके मेरा जो रिएक्शन आ जाए उसको पहले स्टैब्लिश करना है। यू गॉट ए पॉइंट? सर मैं वही पूछूं, जैसे आपने एक जिंक आयरन वाला क्वेश्चन कराया था और कॉपर अमोनिया वाला कराया था, उसमें हम रिएक्शन कैसे बना रहे हैं? उसमें तो ऑलरेडी दे रखा था ना, उसमें तो देखो ऊपर है। नहीं आई नो, वही लिख रहा हूं मैं आपको, यही लिख रहा हूं। देखो सपोज जिंक का जो भी वैल्यू दे रखा हो, ठीक है, आयरन +2 जो भी वैल्यूज है, नो प्रॉब्लम, वैल्यूज के ऊपर मत जाओ और क्वेश्चन में जाओ पहले, ठीक है, जो भी है। ओके, नाउ ये सेल दे रखा है, इस सेल में ऑलरेडी ऐसा लिख रखा है तो लेफ्ट राइट पता चल गया। देखो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड का है, ये राइट हैंड साइड है, तो ये आपका ऑलरेडी कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया। इसमें तो ऑलरेडी लिखने में पता चल गया आपको सेल गिवन है, ठीक है, मगर ऊपर वाले में गिवन नहीं है। यहाँ गिवन है ऑलरेडी, तो आपको पता है कि ये रिएक्शन ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा, ठीक है, ये रिडक्शन होंगे क्योंकि राइट में है, और ये ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑलरेडी पता चल जाता है, ठीक है। ऐसा सेल दे रखा है तो नहीं पता चल जाता है, बट इस ऊपर में नहीं पता चलता है। ऊपर वाले में तो सेल नहीं दे रखा है, हाफ सेल दे रखा है, तो आपको एस्टैब्लिश करना है। सपोज इसका सेल लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? इसका सेल लिखना है तो कैसे लिखोगे, है ना? तो आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ये, ठीक है। एस्टैब्लिश कैसे होगा? आपके पास एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है ना? तो आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जैसे आपका मैं लिखूं कि सिल्वर है, सिल्वर आयन है, ठीक है, सिल्वर एंड सिल्वर आयन है, डबल्स, राइट, doubles, right? So you can say silver sulfate solid है। जनरली इसमें ये लिखा नहीं जाता, अभी मैं आपको मॉडिफाई कर देता हूँ जनरली, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट अलग नहीं दे रखा है ना, तो सिल्वर आयन, ठीक है, और जरा सल्फेट आयन ऑल्सो प्रेजेंट, यस। सो इसको हम ऐसा लिखेंगे कि दिस विल बी सल्फेट आयन -2 एक्वस और सिल्वर सल्फेट एंड सिल्वर, ठीक है। ये इसको हटाओ, इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट नहीं दिखा रखा है। अब नाउ लेट अस सी, यहाँ है सिल्वर मेटल, ये है आपका सिल्वर सॉल्ट और कॉमन एनायन 4, ठीक है, कॉमन एनायन। सो ये है आपका सेल, बट हमने तो ये रेंडमली लिखा है ना कि लेफ्ट में राइट में कैसे रखा है, समझ में है ना? ये हमारा चेक कर सकता है कि राइट में कौन सा होना चाहिए, लेफ्ट में कौन सा होना चाहिए, ये भी हम चेक कर सकते हैं उसकी पोटेंशियल हिसाब से। बट इसमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए कि हमारा एक्सपोनेंस हो सकता है, नॉन एक्सपोनेंस भी हो सकता है। मतलब क्या है? जब आप एक्सपोनेंस लिखोगे तो पोटेंशियल किसका ज्यादा है किसका कम है, जिसका ज्यादा है वो राइट में लिखेंगे, जिसका कम है वो लेफ्ट में रखेंगे, ये एक्सपोनेंस कॉन्सेप्ट है। बट यहां पे हमने इस रिएक्शन को टारगेट करना है, इस रिएक्शन को टारगेट करना है, तो इस रिएक्शन लाने के लिए आपको हो सकता है आपका रिएक्शन में उल्टा भी हो। उल्टा मतलब कि आपका ये जो टर्मिनल है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि सिल्वर सल्फेट, ठीक है, डबल सिल्वर एंड सिल्वर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और नाउ दोनों उल्टा है, 1 and 2, है ना? अब दोनों उल्टा है। अब देखो हमारा फाइंडिंग आउट क्या है, ई स्टैंडर्ड वैल्यू 0.652 वोल्ट्स है, इधर ई स्टैंडर्ड वैल्यू 0.8 वोल्ट्स का है। इसका मतलब कौन सा रिप्रेजेंटेशन एक्सपोनेंशियली सही है?
कैन समबडी टेल मी? एक्सपोंटेनियसली कौन सा टर्मिनल सही है जो लिखने की तरीका? यस, अभी स्वाति बता सकते हैं? सर जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। हाँ, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, जैसे सिल्वर का ज्यादा है तो सिल्वर राइट में होना चाहिए था। यस सर। है ना? तो ये एक्सपोंटेनियसली सही है, मगर एक्चुअली हम जब यहां इस रिएक्शन लिखने में हमने क्या किया? हमने सिल्वर को माइनस किया है, सिल्वर इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये हमने एनोड में लिया है, ये टर्मिनल हमने एनोड में लिया है। इसका मतलब हमारा पहले वाला सही है ना? क्योंकि हमारा ये प्रोसेस जो है नॉन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस में लिखा गया है, क्योंकि हमारा रिएक्शन जो चाहिए वो डिकम्पोजिशन चाहिए। जैसे मैं ऊपर सिल्वर क्लोराइड वाला बताता हूँ। देखो, सिल्वर क्लोराइड वाले में पोटेंशियल कितना आ रहा है? नेगेटिव क्यों आ रहा है? नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, मगर हमको चाहिए यही रिएक्शन, क्योंकि हमारी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा था। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट में निकालना है तो हमारा उस रिएक्शन को हम फोकस करेंगे जिस रिएक्शन से हमारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है? तो हाँ, तो ये ध्यान रखना है, मतलब हमारा सेल निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है, तो कंपल्सरीली हमको एक्सपोंटेनिटी देखना है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स लिखने हैं तो उसका सिर्फ ध्यान रखना है कि रिएक्शन में ध्यान रखना है। तो कभी कभार बच्चे बोलते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि हम कोई भी चीज निकाल रहे हैं वो रिएक्शन बेस है। भूल जाते हैं लोग, सिर्फ राइट लेफ्ट में चला जाता है। ये कभी भी मत जाना, रिएक्शन में फोकस करो। रिएक्शन इज द मेन फॉर एनी कैलकुलेशन। इसलिए मैं शुरू में, आपने देखा होगा, मैं बार बार रिएक्शन लिखता हूं। बार बार क्यों रिएक्शन लिखते हैं? रिएक्शन लिखते इसीलिए हैं कि रिएक्शन की फॉर्म में जो आया है वही आपकी पोटेंशियल में भी आएंगे। ठीक है? क्लियर? एनी डाउट? ओके, ठीक है। देन राम यू वांट टू आस्क समथिंग? Shalu again. Shalu, did you raise the hand? Shalu, you can speak if you raise the hand. Okay, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अनम्यूट नहीं करें, हम नो कर लेते हैं। चलो। Okay, so I hope if there is no questions, then let me stop here for today. Yes, class is over. Yes. एक क्वेश्चंस अनंत सदा, हाँ बताइए, पूछिए। आप जो है, मैं आपका वो कर देना, राइज योर हैंड, आप अपना हाथ डाल दीजिए इसमें। अनंत कहाँ है इसका? हाँ अनंत, हाँ यस अनंत, यू कैन स्पीक। पूछिए क्वेश्चन। अनंत क्वेश्चन पूछिए। सर ये मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में थोड़ा डाउट है सर। बताइए। सर इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में सर आपने जो केएसपी का वैल्यू लिखा है वो 1.58 इंटू पे 10 टू द पावर माइनस 10 कैसे लिखा सर? ये अप्रोक्सीमेशन है। ये जो अच्छा 10 जो लास्ट में जो लिखा है ना, वो ये है ये सर आपका आपकी जो फैक्टर है ना 0.8 की फैक्टर, 0.8 की फैक्टर आप एंटीलॉग लीजिए 10 टू द पावर इसमें। यस सर। ठीक है, तो 1.58 आएगा, वो है 0.8 की वैल्यू है, और उसमें जो है बेसिकली आएगा वो है 0.158। तो उसका एक तो आएगा 10 टू द पावर, सॉरी ये आएगा 1.388 10 टू द पावर -1। तो -1 और -9 करके हमने 10 लिख दिया था, और दिस फैक्टर इज
फ्रॉम द 0.8 वेक्टर। ओ एंटी लॉग लिया है सर यहाँ पर? हाँ हाँ, मतलब बेस 10 के हिसाब से एंटी लॉग लिया है। ओके सर, एक क्वेश्चन पहले भी था सर, उसमें भी एंटी लॉग लिया है जिसमें 7 से मल्टीप्लाई किया है। हाँ हाँ, यस यस, दैट आल्सो द सेम थिंग। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा सालू जी, हाँ हाँ, यू कैन स्पीक सालू। यस, okay, anyway, if there is no question then let me wind up. सर इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस में हाफ सेल कैसे लिखेंगे? और लास्ट टाइम लिखवा तो दिया था महक, लास्ट टाइम जो मैंने लिखा था वाटर का फॉर्मेशन करके आपका ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं लिखे थे? आर यू देयर महक जी? ट्वाइस ऑफ water gives oxygen plus hydrogen and 4 electrons। ठीक है, तो 4 ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट द ऑक्सीजन इवोल्यूशन रिएक्शन। ऑक्सीजन इवोल्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, ठीक है मेघ जी। Solubility product constant or dissociation constant? हाँ, yes, to some extent dissociation constant भी कह सकता है, बट क्योंकि यहाँ स्पेरिंगली सोलुबल सॉल है इसलिए हम ज़्यादातर बेटर लिखते हैं उसमें। ठीक है, नॉट डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट या सोलुबिलिटी कांस्टेंट बेटर माना जाता है बोर्डिंग के लिए। किशोर जी, सालू जी, आपकी बार बार जो है हाथ खड़ा होने का वो आ रहा है और अब क्वेश्चन पूछता नहीं है, पूछिए। Okay, then let me stop here class.